In the previous class, we were doing dimensional formula of those quantities side by side which were having same dimensional formula. Today also there are two quantities which are having same dimensional formula, and those quantities are angular momentum and Planck's constant. Angular momentum is mostly represented with capital L or capital J alphabet, and Planck's constant is represented with small h. Now, angular momentum is property of any object which is rotating, and angular momentum is written as moment of inertia. This is new quantity for you. Moment of inertia into angular velocity. Angular velocity we have done in previous class. So angular momentum is equal to moment of inertia into angular velocity, while Planck's constant h comes in the expression of energy. Energy of a photon, and photon is that particle or energy packet from which the light is made of. You will read, you will study, you will know about the photon in class 12th. But right now you can think of light made of photons, and energy of a photon is equal to Planck's constant into frequency of light, right? So h comes in the expression of energy of photon, and angular momentum has this new term. Angular momentum is also new term to you, and moment of inertia is also new term to you. So we will go by all these three quantities one by one, and then we will derive their dimensional formula. And I am starting with the term moment of inertia quantity. Moment of inertia is represented with alphabet I, right? And what is moment of inertia? जल्दी से उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो उसके फॉर्मूले को याद करना आसान हो जाएगा. तुम्हारे सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं. एक पेन का कैप है, काफ़ी हल्का है, और ये 50 ग्राम का वेट है. मैंने अगर पेन के कैप को और 50 ग्राम के वेट को एक ही इक्वल फोर्स अप्लाई किया तो इनका मोशन ध्यान से देखना. ठीक है, क्या डिफरेंस आया? पेन का कैप काफ़ी दूर तक चला गया, जबकि सेम फोर्स अप्लाई करने पर ये बहुत ही कम डिस्टेंस गया. अगर मैं पूछूं क्यों तो तुम कहोगे क्योंकि ये बहुत हैवी था. इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट को आप अपनी जगह से डिस्प्लेस करना चाहते हो तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी है. अगर वो चीज़ लाइट है तो उसको चलाना आसान है, और अगर वो चीज़ हैवी है तो उसको चलाना मुश्किल है, वो थोड़ी दूर जाकर ही रुक जाती है. तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया. ये हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब इस मोशन को, जो ट्रांसलेशनल मोशन था, सेम कॉन्सेप्ट को हम एक घूमने वाले ऑब्जेक्ट पर ऑब्जर्व करेंगे. मैं इसे रोटेट करूंगी और तुम्हें ये देखना है कि ये कितनी देर तक घूमता है. जस्ट ऑब्जर्व द टाइम ड्यूरिंग विच इट कीप्स ऑन रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस. So you can see it has taken a lot of time to stop. Before it stopped, it was, I think, 1 or 2 minutes complete rotation, right? And now I will put some mass over the rim of this rotating object.
Now I placed some mass and made it heavy at its rim, and now again I just placed this mass over this rotating object with help of a piece of paper, right? And now I will again make it to rotate. Now you just have to observe the time before it stops, time taken by this object before it stops. Now you can easily frame out that this object stops before the object when this object was not having the mass here. Then this object was taking more time to complete more number of rotations, and when it was made heavy with help of this clay, then it was stopped in, I think, few seconds. What is now which is stopping this object when it is heavy to rotate? And that is not inertia, it is moment of inertia. So whatever role is played by inertia in translational motion, the same role is played by moment of inertia in rotational motion. जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है वो जल्दी रुक जाएगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जैसा कि पहले घूमने वाली जो प्लास्टिक की वो स्ट्रिप थी, वो डिस्क पहले देर तक घूमती रही और जब मैंने उसके चारों ओर रिम पर क्ले लगा दी तो वो जल्दी रुक गई, क्योंकि क्ले की वजह से उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया था और उसकी वजह से वो जल्दी रुक गई. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है उसे घुमाना मुश्किल होगा और वो जल्दी रुकेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस ऑब्जेक्ट का कम है उसे घुमाना भी आसान होगा और वो रुकेगा भी देर में. ठीक, तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने देखा ना कि मैंने मास रिम पर बढ़ा दिया था, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी तरह से मास पर डिपेंड करता है जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया मास पर डिपेंड करता था. इसके अलावा तुमने देखा कि मैंने रिम पे बढ़ाया. अगर हम थोड़ा और टाइम लगाएं या तुम ये एक्सपेरिमेंट घर पे परफॉर्म करना चाहो तो तुम देख सकते हो कि अगर तुम क्ले को सेंटर के चारों ओर लगाओ और अगर तुम क्ले को रिम पे लगाओ तो भी टाइम में डिफरेंस आएगा, क्योंकि इस बात पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो उसका मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर पे रखा हुआ है, मतलब कितनी दूर है. अगर ये क्ले मैंने यहाँ सेंटर के पास लगा दी होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस से, जबकि मैंने इसकी रिम पे लगाई थी, कम होता. तो ये थोड़ी देर और चलती, जबकि रिम के लगाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा बढ़ गया था तो ये ज़्यादा जल्दी रुक गई थी. यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को असर डालता है और बहुत ज़्यादा डालता है. यानी स्क्वायर के साथ ये इसके एक्सप्रेशन में आता है. तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा अगर हम एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला काफ़ी इजी है. देखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ओवरऑल ये और कुछ भी हो, है तो डिस्टेंस ना, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m और डिस्टेंस का हो गया l, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब ml2. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ये. और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो यहाँ आ रही है वो हमें पता है कि कल हमने या लास्ट क्लास में हमने इसको किया था कि एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये हम पिछली बार देख चुके हैं. तो एक्चुअली डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वाज टी इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर केवल टी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला है और वो डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर आके टी इनवर्स.
तो अब हमारे लिए एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आसान हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि लीनियर मोमेंटम था। हम पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। L इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और इसके पैरेलल में तुम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, m इंटू वी। तो अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसका एंगुलर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, ट्रांसलेशनल मोशन अगर कोई चीज़ परफॉर्म कर रही है, चल नहीं रही है, इसको स्पेसिफिक करना चाहिए। ट्रांसलेशनल मोशन अगर परफॉर्म कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखो, अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम मास की कंपैरिजन में यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है इनर्शिया का रिप्रेजेंटेशन, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी के कंपैरिजन में यहाँ पर है लीनियर वेलोसिटी के कंपैरिजन में एंगुलर वेलोसिटी। और दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले हमें पता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ml2 t माइनस 1। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन पर। अगर किसी को बहुत मन हो तो क्लास 12th का जो क्लास हमारे ऑलरेडी फोल्डर में पड़ा हुआ है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप इस फोटोन के बारे में थोड़ा और जान सकते हो, क्योंकि फोटोन से ही वो टॉपिक स्टार्ट होता है। लेकिन हम इतना समझ कर शुरू करते हैं कि लाइट इज मेड ऑफ फोटोन एंड फोटोन इज हैविंग एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो दैट विल बी डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम ई से लिख कर दिखा दें, अपॉन डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। Now energy's dimension we have already calculated, ml2t minus 2। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो पिछले क्लास में जाकर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया था वो देख सकता है। और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का तो हमने कंपैरिजन ही किया था कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, दैट इज t इनवर्स। तो ये हो गया ml2t माइनस 2, और ये t ऊपर गया तो +1, that is ml2t minus 1. So this is the dimensional formula of Planck's constant h, and this is dimensional formula of angular momentum, and you can see that they are same. So this is again pair of quantities which have same dimensional formula. गेटिंग द पॉइंट। और अब हम लोग आ जाते हैं उन क्वांटिटीज़ पर जिन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। देखो, हम लोग फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ को डील करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल इज दैट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, which has its value keep on changing, and constant is that physical quantity which has its value fixed. एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोगों ने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा हुआ है। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि फोर्स बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस अपॉन डिस्टेंस square between the two masses, and there is a constant called gravitational constant. इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मतलब क्या कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन मास और डिस्टेंस देखो ये तो वेरी करते हैं। इनको दो मासेस को आप किसी भी डिस्टेंस पे रख दो और कोई भी दो मासेस ले लो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गई वेरिएबल क्वांटिटीज और ये हो गया कांस्टेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्यू क्वांटिटीज विच आर फेमस कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। इस समय हम लोग उन पर्टिकुलर कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले को कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। तो आप सब मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑब्वियसली हमें पता है कि कहाँ से आ रहा है, न्यूटन्स लॉ से। F इज G m1 m2 upon r square. So if we want to find the gravitational formula of G, then we have to leave it on one side of the equal and take rest all the quantities on the right side. So dimensional formula of G is dimensional formula of force into dimensional formula of r square upon dimensional formula of two masses, that means m square. Because it doesn't matter in the field of dimensions कि वो m1 है या m2, both will have the dimension of masses, so I have written m square. So now I can write dimensional formula of force as mlt minus 2, we know it. Distance square, that is L2, और mass square, that is m2. जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं. एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m टू द पावर -1. अब सीक्वेंस देखो, सबसे पहले m, फिर l, फिर t, फिर कोई और क्वांटिटी अगर है तो बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसके डायमेंशंस. तो m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 and t to the power -2. This is dimensional formula of gravitational constant G. Next quantity, Planck's constant हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है. गैस कांस्टेंट, अब हमने सबने पढ़ा हुआ है PV is equal to RT. R is gas constant. So dimensional formula of R is dimensional formula of P pressure into dimensional formula of V volume अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T, दैट इज टेम्परेचर. ठीक है, तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया. आप रफ में इसे तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो. अगर इसका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो फोर्स का हो जाएगा mlt -2 और एरिया का हो जाता है L2. L से एक L कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है ml -1 t -2. तो प्रेशर का हो गया ml -1 t -2, वॉल्यूम का हो गया L3 और टेम्परेचर का आपको पता है कि थीटा, क्योंकि t इज असाइंड टू टाइम. तो ये आपका आंसर हो गया ml2 t -2 थीटा -1. नेक्स्ट कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. अब गैस कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो सारे मटेरियल्स के लिए फिक्स होते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू बट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल. जैसे एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी उससे डिफरेंट होगा, पर स्टील के लिए फिक्स होगा. तो ये भी एक कांस्टेंट है, पर ये मटेरियल पर डिपेंड करता है. तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को समझने के लिए ऐसे समझो कि ये एक रॉड है. 3D में अगर इसको मैं बनाऊं तो ये शायद कुछ ऐसी दिखेगी. स्पून घर पे आप लो और उसका एक एंड फ्लेम पे रख दो और दूसरे एंड को हाथ में पकड़ो तो थोड़ी देर में दूसरा एंड भी हीट अप हो जाता है. तो जो हीट है वो स्पून के लेंथ के अलोंग मूव करती है एनर्जी, हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू योर हैंड, राइट. ये चीज़ यहाँ पर समझनी है कि अगर आपने इधर से हीट इसको दी तो वो हीट कंडक्ट करके इस एंड तक आएगी. जो हीट आपने दी वो मान लो Q हो, तो ये जो हीट है ये डिपेंड करेगी इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर. ठीक है, A पर. जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट यहाँ से एंटर करेगी, तो उतना अमाउंट ज़्यादा इसमें ट्रांसफ़र होगा, कंडक्ट करेगा. दूसरा, ये जो हीट है ये प्रोपोर्शनल होती है टाइम के.
आप जितनी देर तक इसको हीट अप करोगे उतना ज़्यादा हीट कंडक्ट होगा। तीसरा, ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। टेम्परेचर ग्रेडियंट को मैं लिखूं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल। हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझा था कि वेलोसिटी का चेंज होता है डिस्टेंस के साथ। यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जिस एंड को आपने सोर्स की तरफ रखा है हीट के, वो एंड ज़्यादा गर्म होता है और जो फार्दर एंड है वो कम गर्म होता है। तो इन दोनों के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अगर ज़्यादा होगा तो हीट रफ्तार से मूव करेगी, कंडक्ट करेगी। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो उतने ही टाइम में कम हीट इस एंड से इस एंड तक जाएगी। तो कितनी हीट इस एंड से इस एंड तक जा रही है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है, जहाँ ये एल है इन दोनों एंड्स या सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि हीट एक एंड से दूसरे एंड तक जो अमाउंट कंडक्ट होता है वो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इनके प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली जब आप इक्वल साइन लगाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे के, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो आपको हीट, ध्यान देना, एनर्जी, हीट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, और ये ऊपर जाएगा। ये यहाँ पे इसको चेंज इन लेंथ नहीं लिखना है, सिर्फ लेंथ सफिशिएंट है। ठीक, तो अब जल्दी जल्दी से लिखते हैं। एनर्जी, एनर्जी का अभी हम ऊपर देख कर आ रहे हैं जहाँ हमने प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव किया था। हीट एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला उनका सेम रहेगा। तो mL2T-2, ठीक है। लेंथ सिर्फ L, एरिया L2, टाइम T, इस T और इस T में कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद टाइम T के बाद चेंज इन टेम्परेचर का मतलब दो टेम्परेचर का डिफरेंस T2 माइनस T1 भी टेम्परेचर ही होगा, तो थीटा, क्योंकि टेम्परेचर का सिंबल डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा है। तो अब इसको जो कैंसिल हो रहा उसे कैंसिल कर देते हैं, तो हमको मिलेगा m, फिर l टू द पावर 1, t टू द पावर, ये ऊपर जाएगा -3, और थीटा टू द पावर -1। नेक्स्ट क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और तुम्हें याद होगा जब हम लोगों ने एक क्वांटिटी पढ़ी थी पिछले क्लास में जिसमें हमने रिवर के फ्लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ रहे थे जब, तो रिवर के फ्लो के बारे में बात करी थी कि जैसे जैसे रिवर का फ्लो, आप डीप होते जाओ, रिवर के अंदर डेप्थ में जाओ, तो रिवर का फ्लो डिफरेंट लेयर्स का डिक्रीज करता जाता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है, और जो रिवर बेड के साथ अटैच्ड लेयर होती है वो ऑलमोस्ट स्टेबल होती है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन अराइजेस कि भाई इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा क्यों और इसके नीचे वाले की कम क्यों। तो हमने उस दिन भी बात करी थी कि भाई इसकी रफ्तार ज़्यादा और इसकी कुछ कम इसलिए है क्योंकि जब दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रही हैं, तो जब ये चलने की कोशिश करेगी तो इसके नीचे वाली लेयर इसको ड्रैग करती है। उसी तरह से जब ये चलने की कोशिश करती है तो इसके ऊपर वाली और इसके नीचे वाली दोनों मिलके इसको ड्रैग करती हैं। तो लिक्विड की लेयर्स के बीच भी वैसे ही फ्रिक्शन आता है जैसे सॉलिड के बीच, सॉलिड सरफेसेस के स्लिप होने पर एक दूसरे के ऊपर आता है। बस फ़र्क इतना है कि सॉलिड सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन के रूल्स होते हैं और लिक्विड की सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन के रूल्स होते हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट। तो जब हम लिक्विड की सरफेसेस के बीच के फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो हम विस्कस फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कहते। विस्कस फोर्स इज फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड विच आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर। तो चलो विस्कस फोर्स किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहाँ आता है वो देखते हैं। Viscous force is directly proportional to area of the liquid layers
विच आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर। अगर तुम्हें ध्यान हो तो फ्रिक्शनल फोर्स, और नहीं तो ये चीज़ फ्रिक्शन जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो वहाँ पे फ्रिक्शन में हम इसे पढ़ेंगे कि सॉलिड की सरफेसेस की दो लेयर्स जब एक दूसरे पे स्लिप करती हैं तो उनका जो एरिया है स्लिपिंग सरफेसेस का, दैट डजेंट एक्चुअली मैटर। फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर एरिया मैटर करता है। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लिक्विड सर्फेसेस स्लिपिंग ओवर ईच अदर एंड इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये तो हम बात कर चुके हैं पिछली बार कि वेलोसिटी डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, हम उसको अगर डेल्टा एक्स कह दें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कस फोर्स इन दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वल साइन लगाते हैं तो इन दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर बीम बैलेंस में जैसे हम वेट्स रखते हैं उसी तरह से हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। दिस इज ईटा, ग्रीक अल्फाबेट ईटा, ये ऐसे बनता है, ठीक है। और इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो दैट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि वो विस्कस फोर्स है, इट्स फोर्स, नेचर सेम तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो ये डिस्टेंस है तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स का या लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हो गया वो हो गया MLT-2, फिर लेंथ का L हो गया, एरिया का L2 हो गया और वेलोसिटी का हो गया LT-1। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। L is cancelled, this M will remain as it is, then L2 will go up and it will be L-2 और ये L प्लस और साथ में T-2 और ये T-1 ऊपर जाके हो जाएगा T+1। तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला आ गया ML-1 T-1। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम लोगों ने पिछले क्लास में बात करी थी स्ट्रेस की। स्ट्रेस जब किसी मेटल वायर को या किसी नॉट मेटल वायर इनफैक्ट मटेरियल को आप डीफॉर्म करने की कोशिश करो, उसका एरिया बदलो, वॉल्यूम बदलो, और आप क्योंकि एक वायर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, समझने में आसानी होगी, तो आपने एक वायर को दोनों तरफ से खींचा रबर बैंड की तरह, तो उसका डायमेंशन चेंज होता है, वो लंबा होगा। अगर वो मेटल वायर है तो दिखता नहीं है बट यू कैन मेजर द चेंज, है ना। आपको फोर्स भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा लगाना होता है। और हमने बात की थी कि मशीन्स होती हैं जो स्टील वायर की मजबूती टेस्ट करती हैं। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी वहीं आती है जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटा वैसे ही वापस रीगेन कर लेना लेंथ का उस वायर को, ठीक है ना। अब ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है इसको समझते हैं। हम लोगों ने स्प्रिंग के केस में देखा था ना कि जितना फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सटेंशन स्प्रिंग में होगा, यानी मोर एक्चुअली यू कैन से एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल साइन में बदलते हैं तो बीम बैलेंस के दोनों पैन्स को इक्वल करने के लिए हमें इस साइड में एक कांस्टेंट, एक वेट रखना पड़ता है, तो ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक। इधर रखना है कि इधर, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन जब आपने एक वायर को, हम लोगों ने देखा था ना सिलिंड्रिकल वायर, और उस पे आपने फोर्स लगाया इस तरीके से, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, इसकी लेंथ जब इंक्रीज कर गई थोड़ा सा, मान लो इतना, ठीक है, ये जो लेंथ इंक्रीज कर गई इसको हम कहेंगे स्मॉल एल, और जो इसकी एक्चुअल लेंथ थी वो है कैपिटल एल।
तो ये जो फोर्स था, इसको जब आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हो तो इस पूरे प्रोसेस में एक क्वांटिटी आती है स्ट्रेस, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि ये वायर कितना डिफॉर्मेशन बर्दाश्त कर सकता है। उसी तरह से एक दूसरी क्वांटिटी आती है इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसे हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक, डिफॉर्मेशन। और एक्चुअली इस तरह से इसको स्प्रिंग के केस से उलट इसको इस तरीके से मेज़र करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जितना लंबा वायर होगा, जो इलोंगेशन है वो उतना ज़्यादा होता है। यानी ये जो लेंथ का एक्सपेंशन है, ये इस लेंथ पर, कैपिटल एल पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस, इन दोनों क्वांटिटीज़ का रोल इस इलास्टिसिटी के फिनोमेना में होता है। और हुक्स लॉ यहाँ भी है। ये लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेन होगा उतना ही स्ट्रेस पैदा होगा उस ऑब्जेक्ट में। तो अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको कई बार हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं। वैसे 3 तरह के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। अगर लेंथ की बात करें तो यंग्स मॉड्यूलस, अगर एरिया की बात करें तो सुपरफिशियल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरी तरीके का होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो हम इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन, एनर्जी से कंफ्यूज नहीं होना इसको, ये एनर्जी नहीं है, इट इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस अपॉन डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। अब डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन क्योंकि इंटरेस्टिंग है, इसको देखो। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ 2 लेंथ्स। स्ट्रेन का डायमेंशन इंक्रीज इन लेंथ का डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अरे लेंथ तो लेंथ है ना, तो डायमेंशंस दोनों के क्या हो गए, एल, ये चला गया। तो स्ट्रेन क्या है, इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हम ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस अपॉन डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायमेंशन है ही नहीं, तो स्ट्रेस का डायमेंशन वही हो गया जो हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था, और जो प्रेशर का डायमेंशन भी था, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया आपका आया था ml-1 T-2। ठीक। तो ये सारी वो क्वांटिटीज थी जो कांस्टेंट थी, कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट थी और कुछ मटेरियल के हिसाब से कांस्टेंट थी। जैसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, पर अगर अलग अलग मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का आपका वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो स्ट्रेस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ की और कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस की फ्रॉम दिस पार्ट।